ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ خرم خانزادہ کے قدم ہسپتال کے داخلی دروازے پر رکے تو اس کے چہرے پر عجیب سی کشمکش تھی۔ باہوں میں جھولتی نیم بے ہوش لڑکی جس کے کپڑے بے ترتیب تھے، جسے جلدی جلدی سے پہنائے گئے ہوں۔ اس لڑکی کا چہرہ آنسوؤں سے تر اور جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ ایمرجنسی وارڈ کی نرس نے جو ہی یہ صورتحال دیکھی، بھاگ کر اسٹریچر لائی۔ خرم نے جلدی سے لڑکی کو اسٹریچر پر لٹایا اور چاروں طرف نظریں دوڑائیں، جسے کوئی جانا پہچانا چہرہ ڈھونڈ رہا ہو۔ چند لمحوں بعد سفید اوور کوٹ پہنے ڈاکٹر ماہین ہال میں داخل ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں نیند کی خماری ابھی تک باقی تھی، مگر چہرے پر پروفیشنل سختی نمایاں تھی۔ وہ تیزی سے اسٹریچر کی طرف بڑھی، لڑکی کی نبض چیک کی اور نرس کو کچھ ہدایات دی، اور پھر وہ لڑکی کو اندر لے گئی۔ خرم بے چین ہو کر وارڈ کے باہر چکر کاٹنے لگا۔ اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے، حالانکہ ایئر کنڈیشنر پوری رفتار سے چل رہا تھا۔ جب ڈاکٹر ماہین واپس باہر نکلی، اس کا چہرہ سپاٹ تھا، مگر آنکھوں میں کچھ تو تھا جو خرم کو آنکھیں چرانے پر مجبور کر گیا۔ اس کے ساتھ کون ہے؟ خرم کا چہرہ جیسے پل بھر میں زرد ہو گیا ہو۔ وہ گہرا سانس لیتے ہوئے بولا، اس کے ساتھ میں ہوں۔ ماہی نے فوراً ایک قدم پیچھے ہٹایا، جسے کسی انجانے خطرے کو محسوس کر لیا ہو۔ اس کی نظریں خرم کے چہرے کا جائزہ لینے لگی۔ خرم کی آنکھیں ادھر ادھر بھٹک رہی تھیں۔ پسینے میں شرابور اس کا چہرہ واضح طور پر بتا رہا تھا کہ وہ کچھ چھپا رہا ہے۔ یہ تو پولیس کیس ہے۔ کیوں؟ ڈاکٹر کے ماتھے پر بل دے کر وہ بوکھلا کر بولا، کیونکہ اس لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر ماہین سرد لہجے میں بولی۔ اس کی آنکھیں ایکس رے مشین کی طرح خرم خانزادہ کو جانچ رہی تھی۔ خرم ایک لمحے کو ساکت ہوا، پھر جلدی سے بات بنانے کی کوشش کی۔ کیا ہوش آ گیا ہے اسے؟ نہیں، نیم غنودگی میں ہے، لیکن بار بار خرم نام دہرا رہی ہے، رو رہی ہے، کچھ کہنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کون ہے یہ خرم؟ خرم خانزادہ گڑبڑا سا گیا۔ ڈاکٹر ماہین اس کے چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے چونک سی گئی اور ایک دم سے بولی، آپ کون ہیں؟ خرم نے مونچھوں کو تاؤ دیا اور بے نیازی سے بولا، میں کزن ہوں اس کا۔ ڈاکٹر ماہین اسے حیرت سے تکنے لگی۔ خرم کی آنکھیں، اس کی باڈی لینگویج اور سب سے بڑھ کر اس کا لہجہ، سب کچھ اسے جھوٹا اور مصنوعی لگ رہا تھا۔ کزن؟ ماہین نے دہرایا۔ اسے الجھن محسوس ہونے لگی۔ خرم کی آنکھوں میں نہ تو دکھ تھا نہ پریشانی، صرف ایک گھبراہٹ تھی، جیسے کوئی اسے خوف ہو۔ ماہی نے ایک بار پھر لڑکی کی حالت کے بارے میں نرس سے معلومات لی۔ لڑکی اب بھی نیم بے ہوشی میں تھی، لیکن وہ بار بار خرم کا نام لے رہی تھی۔ خرم سے ایک بار پھر سوال کیا گیا، اس کے گھر والوں کو اطلاع دی گئی ہے کیا؟ ہاں، دے دی ہے، وہ نظریں چراتا ہوا بولا، لیکن اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ وہ خرم کو پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، جسے وہ اس کی آنکھوں کے پیچھے چھپے سچ تک رسائی چاہتی ہو۔ ماہین کے اندر کی ڈاکٹر اب ایک عورت بن چکی تھی، جو کسی اور عورت کے ساتھ ہوئی درندگی کی تہہ تک پہنچنا چاہتی تھی۔ اس لڑکی کی ادکھلی آنکھوں میں چھپی بے بسی، اس کا کپ کپاتا جسم اور خرم کی بیزاری اور ہونٹوں پر پراسرار مسکراہٹ ایک ایسی کہانی کہہ رہی تھی جو سچ سے بہت دور تھی۔ وہ وہاں سے جانے لگا تو ایک دم ڈاکٹر ماہین نے اسے روک کر پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کو یہیں پر رکنا ہے۔ تو وہ سٹپٹا سا گیا۔ وہ اس کیس میں پھنسنا نہیں چاہتا تھا، لیکن مصیبت یہ تھی کہ ڈاکٹر ماہین نے اس کے ارد گرد 3 سے 4 لوگ سٹاف نرسنگ کے کھڑے کر دیے تھے، اور اگر وہ وہاں سے زبردستی جانے کی کوشش کرتا تو یہ لوگ مشکوک سمجھتے۔ خرم بار بار اپنی گھڑی دیکھ رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا یہ معاملہ آسان نہیں رہا، اسی لیے وہ سوچ میں پڑ گیا کہ بلال پاشا کو فون کرے یا نہیں۔ وہ جانتا تھا کہ اگر پولیس آئی تو وہ کہیں کا نہیں رہے گا۔ ماہی نے خاموشی سے وارڈ کے کونے میں جا کر لڑکی کی فائل اٹھائی، ایک فارم نکالا اور رپورٹ میں لکھ دیا، زیادتی کیس، پولیس کو اطلاع دینا ضروری ہے۔ جب وہ واپس لوٹی، خرم کو ایک سرد نگاہ سے دیکھا اور کہا، ہم پولیس کو بلانے جا رہے ہیں۔
खुरम के कदम डगमगा गए। उसके चेहरे पर जैसे किसी ने जन्नाटेदार तमाचा रसीद कर दिया हो। वो फौरन बोला, जरूरत नहीं है, मैं उसे प्राइवेट अस्पताल ले जाता हूं। माहिन ने उसे रोका, अब इसे कहीं नहीं ले जा सकते आप। खुरम ने एक आखिरी कोशिश की, आप नहीं समझ रही, वो मेरी फैमिली से है। अगर ये बात बाहर गई तो लोग क्या कहेंगे, हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। माहिन की आवाज अब फौलाद की माने थी। इस लड़की की इज्जत लोगों की इज्जत से ज्यादा अहम है। फिलहाल आप इस लड़की के बारे में फोकस करें, बाकी बातें छोड़ दें। खुरम चुप हो गया, कुछ ना बोल सका। वो जान चुका था कि इस बार बात काबू से निकल गई है। लड़की की सिसकियां अंदर वार्ड से आ रही थी। उसका कमजोर वजूद हर लम्हा झटके खा रहा था। माहिन ने फैसला कर लिया था, वो अब किसी दबाव में नहीं आएगी। उसी लम्हे पुलिस को कॉल की गई। खुरम का रंग फक हो गया। वो अब भी कुछ बोलना चाहता था मगर अल्फाज साथ छोड़ चुके थे। माहिन उसे खामोशी से देखती रही। खुरम खानजादा के माथे पर पसीना मोतियों की तरह झलक रहा था। डॉक्टर माहिन के जाते ही वो बेंच पर बैठ गया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। मेडिकल के 2-3 स्टाफ मेंबर उसे जरा फासले पर उसकी निगरानी पर खड़े कर दिए गए। उसने घबराहट के आलम में जेब से फोन निकाला, कांपते हाथों से बिलाल पाशा का नंबर डायल किया और जल्दी से फोन कान से लगा लिया। जूं ही दूसरी तरफ से कॉल रिसीव की गई, खुरम खानजादा दबी हुई आवाज में कांपते हुए बोला, जनरल अस्पताल में फौरन पहुंच, मैं इस वक्त मुश्किल में गिरफ्तार हूं। फोन के दूसरी तरफ बिलाल पाशा था, जिसने एकदम से घबराते हुए पूछा, खैरियत तो है? क्या हुआ? हॉस्पिटल क्या कर रहा है तू? खुरम की जबान लड़खड़ा गई। ज़ारा का मसला बन गया है। क्या मतलब? क्या हो गया ज़ारा को? कुछ नहीं यार, बस थोड़ी सी पी ली थी मैंने, कुछ होश नहीं रहा और उसके रोकने के बावजूद बस मस्ती कर बैठा। बिलाल पाशा की आवाज में हैरत नहीं थी, बस एक तल्ख सा कह कहा, मस्ती के ज्यादती? अरे यार, वो भी तो जरूरत से ज्यादा सत्ती सावित्री बनती है उन प्राइवेट पार्टियों में। भाई जब तुम ऐसी पार्टियों में जाओगी तो फिर वावेला कैसा? पहले तो जाओ ही ना, फिर इखलाकियात की बकवास क्यों? बिलाल की आवाज में ना शर्मिंदगी थी ना अफसोस, बल्कि गुस्से में लिपटी हुई हकारत थी। तुझे 100 बार कहा है खुरम, मिडिल क्लास लड़कियों को मुंह ज्यादा ना लगाया कर, उन्हें ऐन वक्त पर इज्जत व नामूस का बुखार चढ़ जाता है। खुरम ने एक कच्चा सा कह कहा मारा, जैसे बिलाल के जुमले ने उसकी घबराहट कम कर दी हो। यारा, ये ज़ारा तो चिपको सी थी, मैंने तो कहा भी था इसे कि ऐसी पार्टियों में ना आया करो। एक तो इन महफिलों में इसे जाने का शौक बहुत था, ऊपर से फुल फैशन। 2 गिलास चढ़ाकर खूब हल्ला गुल्ला डांस पार्टनर भी बनी। मुझे लगा काफ़ी आज़ाद ख्याल है, बस उसकी कुर्बत में थोड़ा बहक सा गया तो बीबी अचानक मजलूम बन गई। भाई ऐसे माहौल में तो किसी की नीयत खराब हो ही जाती है। शक्ल से सीधी सादी लगती थी, लेकिन अंदर से पूरी चीज निकली। खुरम ने सिगरेट झुलकाया, धुआं मुंह से बाहर निकाला और बेपरवाही से बोलता चला गया, लेकिन तुम उसे अस्पताल क्यों लेकर गए? अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की क्या जरूरत थी? बिलाल पाशा खफा हुआ तो वो एकदम से बोला, यार क्या करता, उसकी तो हालत गैर हो गई थी। मैंने सोचा मर आ गई तो कहीं मुसीबत ना बन जाए, इसलिए लेकर अस्पताल भागा, मगर यहां तो नेकी गले ही पड़ गई है। अब अस्पताल में क्या बोल रहे हैं? अभी तो नीम बेहोश है, लेकिन पागल की बच्ची नीम बेहोशी में भी बक कर रही है। वो माहीन तो इस केस को ज्यादा ही सीरियस ले रही है। माहीन? अब ये कौन है? कोई यंग डॉक्टर है, बड़ा मस्त पीस है, गजाली आंखें, स्याह रेशमी बाल। बस ना पूछ। बकवास बंद कर यार, हर वक्त औरत नामा शुरू मत किया कर। ये बताओ उसे क्या पतंगे लग गए? वो मुझसे पूछती है कि खुरम कौन है, उसका नाम पुलिस को देना है। अब इस दोशीज़ा को क्या कहूं कि माँ बदौलत ही खुरम है? फिर क्या? मैंने काफ़ी मना किया, समझती नहीं, लेकिन जब उसे पता चला तो ये तो मुझे अस्पताल में ही मार डालेगी। माँ कसम फुल क़यामत है। अभी उसे मालूम नहीं, उससे बड़ी क़यामतें यहाँ मौजूद हैं। बिलाल पाशा सर्द लहजे में बोला तो खुरम को हौसला हुआ। यार मैं कब का जा चुका होता, लेकिन उसने मुझे बिठा रखा है।
मैं उसे मशकूक नहीं करना चाहता, लेकिन अगर ज़ारा को होश आ गया और उसने मुझे देखते ही चीखें मारी तो क्या होगा? ये डॉक्टर मेरा जीना हराम कर देगी। इतनी औकात नहीं है इस डॉक्टरनी की। क्या औरत के नाम पर डर जाता है तू भी? डरता वरता नहीं, मगर यार कहीं रिपोर्ट ना दर्ज कर दे। उसने कहा है पुलिस को बुलाने का। बिला वजह अखलाकियात की चैंपियन बनती है। कुछ बोला उसने? हाँ, कह तो रही थी। बिलाल पाशा ने कह कहा मारा। पुलिस? अबे पुलिस बुलवाएगी। फिक्र ना कर, ये शौक भी पूरा कर लेने दे। वैसे भी पुलिस तो मेरी जेब में है। उसकी बोंगी बातों से परेशान होने ना बैठ जाना। ये सिस्टम हमारे हाथ का खिलौना है। डॉक्टर, पुलिस, वकील सब खरीदे हुए हैं। एक रिपोर्ट दबाने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या करना पड़ेगा? 5 लाख, 10 लाख? तू फिक्र ना कर, बस ज्यादा पुर्जे निकाले तो इसका भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। नजर रख उस पर, और घबराने की जरूरत नहीं है। बिलाल शाह ने तेजी से कहा। ये दोनों एक ऐसी दुनिया के नुमाइंदे थे जो औरत को सिर्फ जिस्म तक महदूद समझते थे। उनके लिए इज्जत वकार सिर्फ अपने लिए अहम था। दूसरों की इज्जत उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी, और ना ही उनके चेहरे पर कोई शर्मिंदगी थी, ना कोई एहसास जुर्म था। खुर्रम मुतमईन था कि बिलाल सब संभाल लेगा। बिलाल मुतमईन था कि दुनिया अब भी ताकत के सामने झुकती है। बिलाल ने फोन बंद करते हुए कहा, कल सुबह तक ये केस खत्म हो चुका होगा। डॉक्टर को खरीद लो, लड़की के माँ बाप को धमका दो, और अगर ज्यादा बकवास करे तो उसे किसी पागल खाने भिजवा दो। वैसे भी ज्यादती के मुतासरीन की कौन सुनता है? सबसे पहले उन्हीं की किरदार कशी होती है। मीडिया को पता लगेगा तो 2-4 दिन वावेला होगा, कपड़ों पर तबसरा किया जाएगा, ये खुद मुंह छुपाते फिरेंगे। खुर्रम ने मुस्कुराकर कहा, हाँ यार वाकई तू सही कह रहा है, पक्का उस्ताद है तू इस मैदान का। दूसरी तरफ ज़ारा इस वक्त अस्पताल के कमरे में बेहाल पड़ी थी। उसकी आवाज़ शायद सुनी जाए, शायद ना सुनी जाए, लेकिन खुर्रम और बिलाल जैसे दरिंदे जानते थे कि वो कब, कहाँ और कैसे इंसाफ का गला घोंट सकते हैं। जैसे ही खुर्रम खानजादा ने बिलाल पाशा को कॉल पर पूरी तसल्ली देकर फ़ोन बंद किया, उसका दिल एक लम्हे को कदरे हल्का हुआ। पसीने में शराबोर जिस्म जैसे रिलैक्स हो गया। उसे चाय की शदीद तलब ने आन घेरा और वो फौरन कुर्सी से उठकर जैसे ही दरवाजे की तरफ मुड़ा, सामने से आते सब इंस्पेक्टर की वर्दी ने उसके कदमों तले से जान निकाल दी। चेहरे का रंग पल भर में जर्द हो गया। एक झटके से सिगरेट हाथ से छूटा और जमीन पर जा गिरा। आंखों में खौफ, माथे पर पसीने के नन्हे कतरे, और हाथ फिर से कोट की जेब की तरफ गया जहां मोबाइल पड़ा था। जैसे ये जादू की छड़ी हो, हर मसले का हल इसी में हो। पुलिस ऑफिसर की नजरें एकदम उस पर जम गईं। ये वो निगाहें थी जो सच को खोद निकालने की आदी हैं, झूठ को पहचान लेती हैं। वो वहां से दूसरी तरफ निकलने ही लगा था कि उसकी कानों में सख्त आवाज आई, सुनिए, आप कहीं नहीं जा सकते, आपको यहां ठहरना पड़ेगा। खुर्रम ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, चेहरे पर एक मसनूई सुकून लाने की नाकाम कोशिश की। क्यों ठहरना पड़ेगा? क्या मसला है? डॉक्टर माही ने थोड़ा आगे होकर रास्ता रोकते हुए कहा, क्योंकि आप इस लड़की के साथ आए हैं, आप वाहिद गवाह हैं। हम नहीं चाहते लड़की के साथ आए हुए फर्द से बयान लेने से पहले वो इधर उधर हो जाए। लेकिन उसके चेहरे पर कुछ ऐसा था जिसने डॉक्टर माहीन को चौंका दिया। इस्तराब, बेचैनी और छुपाने की नाकाम कोशिश। डॉक्टर माहीन की तरबियत याफ्ता आंखों ने पल भर में खुर्रम के अंदर की हलचल महसूस कर ली थी। खुर्रम की जबान तालू से चिपक गई। उसके दिल की धड़कन जैसे सीने से बाहर सुनाई दे रही थी। उसने एक लम्हे को इर्द गिर्द देखा। वो फंस चुका था, और इससे ज्यादा खतरनाक बात यह थी कि सब इंस्पेक्टर अब बहुत करीब आ चुका था। सब इंस्पेक्टर डॉक्टर माहीन के पास आया। खुर्रम ने फौरी तौर पर पीछे कदम खींचे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सिपाही उसकी दोनों तरफ खड़े हो गए। उनकी नजरें बार बार इस पर पड़ रही थी, जैसे उसके माथे पर मशकूक का लेबल चिस्पा हो। खुर्रम की अंदरूनी घबराहट उसकी पेशानी पर चमक रही थी। उसकी आंखें खुद ब खुद झुकने लगी। डॉक्टर माही ने सब इंस्पेक्टर को खामोशी से वो सब बताया जो अभी कुछ देर पहले हुआ था। लड़की की हालत, उसकी नीम गनूदगी में बोले गए अल्फाज, और सबसे बढ़कर खुर्रम खानजादा का इब्तदाई बयान। सब इंस्पेक्टर की पेशानी पर शिकनें गहरी हो गईं।
खुरम का दिल चाहा जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। उसने निचले होंठ को दांतों से दबाया और जैसे ही पुलिस डॉक्टर माहीन से बातों में मशगूल हुई, उसने तेजी से मोबाइल निकाला और बिलाल पाशा को कॉल मिलाई। कॉल मिलते ही सिर्फ इतना कहा, फौरन पहुंच, गड़बड़ हो गई है, पुलिस आ गई है, और फोन बंद कर दिया, जैसे मजीद कुछ बोलने की हिम्मत ना हो। वो जानता था अगर एक लम्हा भी जाया हुआ तो सारा खेल बिगड़ सकता है। उधर सब इंस्पेक्टर की आंखें एक बार फिर खुरम पर जा टिकी। वो समझ गया था ये शख्स फरार चाहता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी आंखों की घबराहट और बार बार मोबाइल को देखना सब कुछ साफ बता रहा था कि वो किसी दबाव में है या किसी बड़ी चीज को छुपा रहा है। हम लड़की से बयान लेना चाहते हैं, सब इंस्पेक्टर बोला तो डॉक्टर माही ने नरमी मगर मजबूती से कहा, अभी वो नीम बेहोश है, हालत काफी नाजुक है, आप इब्तिदाई तफ्तीश फिलहाल इनसे लें। डॉक्टर माहीन की निगाहें भी खुरम की हरकत पर जम सी गईं। उसने खुरम को अब शदीद इज़्तिराब में देखा था। एक मुतासर लड़की को लेकर आए शख्स के चेहरे पर इतनी दहशत, इतनी बेचैनी। वो उस लम्हे मुकम्मल मशकूक हो चुका था। बिलाल पाशा अभी तक नहीं पहुंचा था। खुरम ने एक बार फिर फोन देखने के बहाने घड़ी पर वक्त देखा। हर सेकंड जिद्दी लग रहा था। उसके गले में जैसे कांटे उतर रहे थे। पसीने की बूंदें गर्दन के किनारों से बहने लगी। सब इंस्पेक्टर ने नोटबुक निकालकर कहा, हमें आपका मुकम्मल बयान चाहिए, और जब लड़की को होश आएगा तो हम उसका बयान आपके बयान से मिलाकर देखेंगे। खुरम की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसका दिमाग बंद होता जा रहा था। उसे बस बिलाल पाशा का चेहरा याद आ रहा था, वही बिलाल जो हमेशा हर मुसीबत से निकालता था, मगर अब तक वो नजर नहीं आ रहा था। खुरम को लगा जैसे उसका सब कुछ डूबने वाला है। सब इंस्पेक्टर ने खुरम की आंखों में झांका और धीरे से कहा, याद रखो, हम सच तक जरूर पहुंचेंगे। वो अपने तजर्बे से जान चुका था कि इस शख्स के आसाब जवाब दे रहे हैं। वर्दी की ताकत ने उसके लहजे की घबराहट नोट कर ली थी। खुरम ने जबरदस्ती एक मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई। सर, मैं बस चाय लेने जा रहा था, आप कुछ पूछना चाहते हैं? सब इंस्पेक्टर ने सवालिया नजरों से उसे देखा, जैसे वो उस मसनूई मुस्कुराहट के पीछे छुपी घबराहट को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। आपने कहा आप उस लड़की के कजन हैं? खुरम की आंखों में एक बार फिर खौफ चमक गया, मगर जल्दी से संभला। जी जी बिल्कुल, ज़ारा मेरी कजन है, हम अक्सर पार्टीज में जाते हैं, कल भी हम एक फंक्शन से आ रहे थे। सब इंस्पेक्टर ने अगला सवाल दागा, तो इसकी ये हालत कैसे हो गई? वो जख्मी है, शदीद सदमे में है। मुझे क्या पता, मैं उसके साथ पार्टी में जरूर गया था, मगर फिर वो मुझसे पार्टी में अलग हो गई थी। मुझे नहीं पता कि इसके साथ क्या हुआ। इसकी दोस्त आई तो उसने मुझे बताया कि ज़ारा बेहोश है, तो मैंने समझा शायद ज़्यादा पीने की वजह से तबीयत खराब हो गई है, तो मैं इसे लेकर अस्पताल आ गया। बस मैं इतनी ही बात जानता हूँ। खुरम खानजादा को जो कुछ समझ आया उसने फौरन उगल दिया। उसी लम्हे डॉक्टर माही ने एक बार फिर दरमियान में बोली, वो लड़की नीम गनूदगी में रो रही है, बार बार कह रही है मुझे मत छुओ, बस करो, मत करो। आपके ख्याल में लड़की के मुंह से ऐसे अल्फाज क्यों निकलते हैं? खुरम ने नजरें चुरा ली, जबान खुश्क हो गई। मुझे कुछ इल्म नहीं। सब इंस्पेक्टर का लहजा अब सख्त होता जा रहा था। इन सब की लिस्ट दें, नाम और नंबर समेत। किनकी? जो जो पार्टी में मौजूद थे। जाहिर है उन्हीं के नाम की लिस्ट मांग रहा हूं। खुरम की पसलियों में दर्द उठा। वो जानता था अगर जबान फिसल गई तो सब कुछ बर्बाद हो सकता है। इसी असना में नर्स कमरे से निकली और आहिस्ता से डॉक्टर माहीन के कान में कुछ कहा। माहीन ने फौरन सब इंस्पेक्टर को इत्तला दी। लड़की को होश आने के आसार हैं, मगर अभी मुकम्मल होश में नहीं। मुमकिन है कुछ मिनट बाद वो बयान दे सके। सब इंस्पेक्टर ने गहरी सांस ली। खुरम के लिए यह लम्हा कयामत का था। बिलाल कहाँ रह गया? फोन बंद करने के बाद अभी तक आया क्यों नहीं? जल्दी आजा पाशा, मसला तो संगीन ही होता जा रहा है। पिछले आधे घंटे में खुरम खानजादा की जिंदगी की सारी ताकत, अकड़, गरूर पिघलकर जमीन पर बहने लगा था। ये वो लम्हा था जहां ताकत का नशा टूटता है और असलियत सामने आती है। उसकी सांसें बेतरतीब हो रही थी। सामने सब इंस्पेक्टर, दाएं डॉक्टर माहीन अंदर नीम बेहोशी में ज़ारा, और बाईं तरफ वही दरवाज़ा जहां से किसी भी लम्हे बिलाल पाशा अंदर दाखिल हो सकता था।
اپنے رعونت بھرے لہجے اور جیب میں بند لامحدود اختیار، سفارش اور رشوتوں کے ساتھ۔ مگر اس وقت خرم خانزادہ مکمل تنہا کھڑا تھا، اپنی شیطانی سوچ، مکر اور ایک سنگین جرم کے ساتھ۔ وقت کی ریت جیسے اس کے ہاتھوں سے پھسل رہی تھی اور قانون جسے وہ برسوں سے خریدتا آ رہا تھا پہلی بار اس کے سینے پر آنکھیں گاڑ کر کھڑا تھا۔ بلال پاشا کے قدم تیزی سے اسپتال کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کال کے الفاظ ابھی تک دماغ میں گونج رہے تھے۔ خرم کی کپکپاتی آواز، بار بار دہرایا جانے والا جملہ، فوراً پہنچ، گڑبڑ ہو گئی ہے، پولیس آ گئی ہے۔ بلال پاشا کے لیے یہ کوئی عام اطلاع نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے اور اسے فوراً قابو پانا ہوگا۔ جیسے ہی وہ شیشے کے خودکار دروازوں سے اندر داخل ہوا، اس کی نظریں فوراً کوریڈور میں بھٹکنے لگی۔ تھوڑا آگے ہی منظر اس کی آنکھوں میں ٹھٹک کر رہ گیا۔ خرم خانزادہ، جس کا چہرہ زرد پڑا تھا، پولیس کے سامنے بیٹھا تھا۔ ایک سب انسپکٹر کچھ لکھ رہا تھا، دوسرا سوالات کر رہا تھا اور خرم کے چہرے کا رنگ پل پل بدل رہا تھا۔ بلال کی آنکھوں میں ایک چمک آئی۔ وہ تیز قدموں سے آگے بڑھا اور جیسے ہی پولیس والوں نے اسے دیکھا، ان کے چہرے کے تاثرات فوراً بدل گئے۔ وہی درستی، وہی سختی جیسے گھل کر مٹھاس میں بدل گئی ہو۔ سب انسپکٹر جلدی سے اپنی نشست سے اٹھا، مسکراہٹ چہرے پر سجا لی اور جھک کر بلال پاشا سے مصافحہ کرنے لگا۔ ارے بلال صاحب، آپ، خوش آمدید، کیسے آنا ہوا؟ بلال نے سرد لہجے میں خرم کی طرف اشارہ کیا۔ یہ خرم خانزادہ ہے، میرا بچپن کا دوست ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اسے ایسے بٹھا رکھا ہے؟ سب انسپکٹر کے لبوں پر ایک زبردستی کی مسکراہٹ آئی۔ اس نے جلدی سے کاغذ بند کیا، قلم جیب میں رکھا اور بولا، ارے نہیں بلال صاحب، ہم نے کہاں بٹھا رکھا ہے، بس ایسے ہی گپ شپ کر رہے تھے، ایک رسمی سی بات چیت تھی۔ بلال نے بغیر جذبات ظاہر کیے جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک لفافہ نکالا اور سب انسپکٹر کی طرف بڑھایا۔ ہاتھ کی پشت سے لفافہ تھماتے ہوئے بولا، گپ شپ کسی اور وقت کر لینا، فی الحال اسے جانے دو۔ پھر دھیرے سے کان کے قریب جا کر کہا، یہ چائے پانی ہے، مزید بھی ملیں گے۔ سب انسپکٹر نے گردن جھکا دی، لفافہ ہاتھ میں لے لیا۔ سپاہی فوراً ایک طرف ہو گئے۔ خرم کو اشارہ کیا کہ اب وہ جا سکتا ہے۔ خرم نے ایک لمحے کو بلال کو دیکھا، آنکھوں میں شکر گزاری اور خوف دونوں جھلک رہے تھے۔ بلال نے آگے بڑھتے ارد گرد کا جائزہ لیا، پھر ایک دروازے کے سامنے پہنچ کر اجازت لیے بغیر اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں ڈاکٹر ماہین کسی فائل پر جھکی ہوئی تھی۔ دروازہ کھلا تو وہ چونک کر اٹھی، سامنے کھڑے شخص کو ایک نظر دیکھا تو حیرت اور غصے کی ملی جلی کیفیات اس کے چہرے پر آ گئی۔ وہ سوالیہ نظروں سے آنے والے کی طرف دیکھنے لگی۔ بلال نے کرسی گھسیٹی اور بیٹھ گیا تو ڈاکٹر ماہین کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ آج تک کوئی بھی اس کے کمرے میں اس طرح داخل نہیں ہوا تھا۔ اسے شدید برا بھی لگا، لیکن وہ خاموش رہی۔ یہ زارا کا کیا معاملہ ہے؟ بلال پاشا نے بڑے ہی عجیب انداز سے اسے سوال کیا۔ ڈاکٹر ماہی نے اس باروب خوبرو نوجوان کی طرف دیکھا، جس کی سرد نظروں سے جھلکتی بے نیازی دیکھ کر نہ جانے کیوں غصہ آ گیا۔ آپ کون؟ اس نے غصے میں پوچھا۔ بلال مسکرایا جیسے یہ سوال اس کے لیے مذاق ہو۔ میں خرم خانزادہ کا دوست ہوں۔ واٹ؟ خرم خانزادہ؟ وہ کہاں ہے؟ باہر، وہی تو زارا کو لایا ہے۔ ماہی نے پلکیں جھپکائیں۔ لفظ دوست اس لمحے اس کے کانوں میں زہر بن کر ٹپکا۔ زارا خرم کا ہی تو نام لے رہی ہے، کہیں اسی نے تو… یا اللہ! اس کا ذہن گھوم گیا۔ اوہو، تو آپ خرم کے دوست ہیں؟ بلال نے سرسری انداز میں کندھے اچکائے۔ جی، کوئی شک؟ نہیں، شک تو کوئی نہیں۔ ڈاکٹر ماہی نے پینترا بدلا۔ چلیں، گڈ ہو گیا۔ وہ مسکراتی آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، میں صرف یہ جاننے آیا ہوں کہ وہ لڑکی زارا کی حالت کیسی ہے؟ ڈاکٹر ماہی نے فائل بند کی، کرسی سیدھی کی اور صاف لفظوں میں بولی، آپ کو اس لڑکی سے کیا غرض ہے؟ بلال کی مسکراہٹ ایک پل کو رکی۔ وہ جانتا تھا کہ سامنے بیٹھی خاتون آسانی سے مروب نہیں ہو رہی۔ اس کی آواز میں اعتماد تھا اور آنکھوں میں وہ بے باکی جو اکثر طاقتور مردوں کو ناگوار گزرتی ہے۔ ڈاکٹر، میں اسے جانتا ہوں، وہ پارٹی گرل ہے۔ میرے اکثر دوستوں کے ساتھ اس کی بڑی جمتی ہے۔ لفظ جمتی کو اس نے بڑے معنی خیز انداز میں کہا
तो डॉक्टर माहीन को बेचैनी सी हो गई। मेरा दोस्त बदकिस्मती से आज वहां था और आपकी रिपोर्टें, पुलिस के सवालात, ये सब बिला वजह उसे कटहरे में खड़ा किए हैं जो हमारे लिए मसाइल खड़े कर सकते हैं। बिला वजह? जनाब, उसके साथ ज्यादती हुई है। लड़की शदीद जिस्मानी और जहनी अजियत में है। उसका पूरा जिस्म जख्मों से भरा हुआ है। वो नीम बेहोश है। आपको उसकी तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रिपोर्टें आपके लिए मसला बन रही हैं। माहीन की आंखों में अब वाज़ेह गुस्सा उभरा। मैं जनाब नहीं, बिलाल पाशा हूं। आप अगर मुझे मेरे नाम से पुकारेंगी तो मुझे खुशी होगी। उस बज़ाहिर मुस्कुराता हुआ बोला, लेकिन उसका लहजा इतना सर्द था कि डॉक्टर माहीन को अपनी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ती महसूस हुई। डॉक्टर साहिबा, आप जज्बाती हो रही हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि मामला बढ़ने ना पाए। लड़की को हम पर भरोसा है, हम उसका ख्याल रख लेंगे। आप सिर्फ अपनी रिपोर्ट्स नरम रखें। माहीन उसकी बात पर शशतर रह गई और हैरान होकर बोली, नरम रखें? क्या मतलब है आपका? मैं झूठी रिपोर्ट दूं? आप चाहते हैं कि मैं उसके साथ हुई दरिंदगी को छुपा लूं, सिर्फ इसीलिए कि आप किसी बाअसर खानदान से हैं? बिलाल अब भी मुस्कुरा रहा था, मगर मुस्कुराहट में जहर था। आप चाहें तो ये बात ऊपर तक पहुंचा सकती हैं, लेकिन फिर अस्पताल की बोर्ड तक, आपकी मेडिकल लाइसेंसिंग अथॉरिटी तक, आपकी मेडिकल की डिग्री तक सब कुछ जब्त हो सकता है। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? नहीं, अभी तो समझा रहा हूं। वो उसके सुर्ख होते चेहरे को देखकर नरम लहजे में बोला, हमारा मकसद लड़की को नुकसान पहुंचाना नहीं, बस ये सब मीडिया तक ना जाए। माहीन की सांसें तेज हो गई। उसे लगा जैसे सामने बैठा शख्स ना सिर्फ ज़ारा बल्कि उस जैसे हर कमजोर का कातिल है जो इस निज़ाम को अपनी जेब में रखता है। जैसे इंसानियत से ज्यादा सिस्टम की जबान आती है। बिलाल की मुस्कुराहट अब जहर खंद हो गई। वो उठा, जेब से कार्ड निकाला और मेज पर रख दिया। सोच लें डॉक्टर साहिबा, आज आपके पास इख्तियार है, कल शायद आप खाली हाथ सड़क पर खड़ी हों। फिर वो मुड़ा और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया, लेकिन पीछे कमरे में एक नौजवान डॉक्टर की आंखों में वो चिंगारी छोड़ गया जो जुल्म के हर धुएं को जला देने के लिए काफी होती है। ज़ारा अब होश में थी, लेकिन चुपचाप दीवार को खाली नजरों से तके जा रही थी। डॉक्टर माहीन उसके बेड के करीब आई तो ज़ारा ने एक नजर उसकी तरफ देखा और फिर फूट फूट कर रो दी। डॉक्टर माहीन ने नरमी से उसका हाथ थामा। खुद भी अंदर से लरस गई थी, मगर उस लम्हे उसने खुद को मजबूत बनाया। बहुत नरम लहजे में बोली, ज़ारा, मैं तुम्हारे साथ हूं, कुछ नहीं होगा तुम्हें, बस बताएं कि क्या हुआ था। ज़ारा ने टूटे फूटे जुमलों में रोते हुए अपनी रुदात सुना दी। उसने बताया कि कैसे पार्टी में सब कुछ नॉर्मल था, कैसे अचानक उसे सॉफ्ट ड्रिंक जबरदस्ती पिलाई गई, लेकिन उसे मुकम्मल बेहोशी नहीं हुई। वो होश में ही थी जब खुर्रम खानजादा उसे कमरे में ले गया, और फिर ये कहकर वो अपना मुंह छुपाकर रोने लगी, क्या खुर्रम खानजादा की कोई तस्वीर तुम्हारे पास है? ज़ारा ने इस बात में सर हिलाया। उसने पर्स से मोबाइल निकाला, गैलरी क्लिक की और एक तस्वीर ओपन करके मोबाइल डॉक्टर माहीन के हाथ में दे दिया। ज़ारा ने आंखें फैलाकर लरसते लबों से कहा, यही है। माहीन को लगा उसके पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। ये तो वही है जो रात के वक्त ज़ारा को अस्पताल लेकर आया था। यही वो शख्स था जिसने खुद को कज़न कहा था। क्या ये तुम्हारा कज़न है? नहीं तो ये बस मेरा सिर्फ दोस्त है। लेकिन वो तो तुम्हें अपनी कज़न कह रहा था। वो झूठ बोल रहा है। डॉक्टर माहीन गहरी सोच में डूब गई। इस वाक़े को तकरीबन 1 हफ्ता गुजर चुका था और उसे 1 हफ्ते में कई बाअसर लोगों के बशमूल बिलाल पाशा का फ़ोन आया। वो मुसलसल दबाव डालकर और कहीं धमकी वाला अंदाज इख्तियार करते उसे मेडिकल रिपोर्ट अपने मुताबिक बनाने का कह रहे थे। उनकी बस एक ही डिमांड थी कि इसमें ज्यादती का जिक्र नहीं करना। माही ने वो तमाम कॉल्स खुद सुनी थी, लेकिन उसके जज्बा इस्तकलाल पर कोई फ़र्क ना पड़ा। उसने ये तहैया कर लिया था कि हर सूरत ज़ारा को इंसाफ दिलवा कर रहेगी, क्योंकि वो ज़ारा के मामले में खामोश रहकर अपने ज़मीर का सौदा नहीं कर सकती थी। माही ने फैसला कर लिया। उसने ज़ारा का मुकम्मल तिब्बी मुआयना करवाया, DNA सैंपल्स लिए, जिस्म पर जख्मों की जगह नोट की,
नफ्सियाती कैफियत लिखी और हर चीज मुकम्मल सच के साथ रिपोर्ट में तहरीर कर दी। लेकिन उसका दिल पुरसकून हो गया। मगर जब बिलाल पाशा को इत्तला मिली कि रिपोर्ट तैयार हो गई है और उसमें ज्यादती की तस्दीक की गई है, तो उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने फौरन फोन उठाया और शदीद गुस्से में कहा, तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? तुम हमारे खानदान के खिलाफ जा रही हो। माही ने सादगी से जवाब दिया, मैं सच के साथ खड़ी हूं और सच किसी खानदान का मोहताज नहीं होता। डॉक्टर माहीन की बात अभी मुकम्मल नहीं हुई थी कि बिलाल पाशा ने उसकी कॉल काट दी। बिलाल कानूनी माहिरीन को हरकत में लाया, अस्पताल के बोर्ड पर दबाव डाला, यहां तक कि माहीन के खिलाफ झूठे इल्जामात लगाने की तैयारी शुरू की। मगर माहीन की रिपोर्ट इतनी मजबूत, इतनी सच्ची थी कि उसमें कोई रद्दो बदल मुमकिन न रहा। दूसरी तरफ ज़ारा, जो कई दिनों तक डरी सहमी बेड पर पड़ी थी, वो पुरएतमाद होने लगी। डॉक्टर माहीन उसके लिए वो चेहरा थी जो अंधेरे में उम्मीद का चिराग बनी। उसने ज़ारा का हौसला बढ़ाया, उसे मशवरे दिए और साथ ही कानूनन उसे गाइड किया कि वो कैसे इंसाफ हासिल कर सकती है। डॉक्टर माही ने जब ज़ारा के साथ होने वाली ज्यादती की मेडिकल रिपोर्ट मुकम्मल करके अस्पताल के इंचार्ज को पेश की, तो इंचार्ज ने वो रिपोर्ट एक बार नहीं कई बार देखी। कुछ लम्हों बाद उसने चश्मा उतारा, गहरी सांस ली और संजीदा लहजे में बोला, एक दफा फिर सोच लो माहीन, तुम किसी का नाम लिख रही हो, किसी के खिलाफ रिपोर्ट दे रही हो। ये लोग बहुत बाअसर हैं, इनके खिलाफ खड़े होना आसान नहीं होता। ये तुम्हारी मुलाजमत, तुम्हारी जिंदगी, सब कुछ निगल सकते हैं। माहीन ने नरमी से मगर पुख्ता लहजे में जवाब दिया, सर, मैंने वही लिखा है जो सच है। अगर एक मजलूम की आवाज मैं नहीं बन सकती तो फिर इस इल्म और इस हल्फ का क्या फायदा? इंचार्ज ने सर झुका लिया जैसे कोई फैसला उसके बस से बाहर हो, मगर माहीन के अंदर जैसे एक तूफान था, जैसे अब दबाया नहीं जा सकता था। वो वार्ड का राउंड लेकर वापस आई तो दिमाग में ज़ारा की थकी हुई मगर मुतमईन आंखें याद आईं। वो लम्हा जब ज़ारा ने कहा था, अब मुझे लगता है मैं तन्हा नहीं हूं, माहीन को सरशार कर गया। अभी वो कुर्सी पर बैठकर फाइलों का जायजा ले रही थी कि ऑफिस का दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ खुला और बिलाल पाशा अपने गार्ड के साथ अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर गुस्से की चिंगारियां साफ महसूस हो रही थी। वो दरवाजा बंद किए बगैर तेज कदमों से सीधा टेबल तक पहुंचा और बगैर इजाजत के सामने खड़ा हो गया। डॉक्टर माहीन फौरन खड़ी हो गई। बिलाल ने गुस्से की शिद्दत से अपना हाथ जोर से टेबल पर मारा। मैंने कहा था ना, झूठी रिपोर्ट बनाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सच लिखने की? कितनी रकम चाहिए, बोलो। माही ने एक लम्हे को गहरा सांस लिया। उसके हाथ मुट्ठी की सूरत में बंद हो गए। मैं पैसे के लिए ईमान नहीं बेचती। बिलाल का चेहरा सुर्ख हो गया। जानती हो तुम क्या कर रही हो? तुम्हें अंदाजा है ये सब क्या नतीजा ला सकता है? हम तुम्हें मुअत्तल भी करवा सकते हैं, तुम्हारा लाइसेंस मनसूख हो सकता है, कोई अस्पताल तुम्हें नौकरी नहीं देगा। क्या आप मुझे धमका रहे हैं मिस्टर बिलाल? लेकिन यकीन कीजिए मैं बिल्कुल भी आपसे नहीं डरती। आपने जो करना है कर लें, पुलिस और कानून के रास्ते हमें भी पता है। बिलाल ने कह कहा लगाया, पुलिस हमारे इशारे पर चलती है, तुम 2 मिनट इन रस्तों पर नहीं चल सकोगी। ये कहकर बिलाल ने सामने रखी फाइलों को जोर से उठाकर जमीन पर फेंक दिया। गार्ड्स खूनख्वार नजरों से डॉक्टर माहीन को देखने लगे। बाहर निकलने से पहले उसने पलटकर माहीन को देखा। ये बात याद रखना डॉक्टर, हम इंतकाम लेना नहीं भूलते। वो दरवाजा जोर से बंद करते बाहर निकल गया तो माहीन को ऐसे लगा जैसे उसका रुका हुआ सांस बहाल हो गया हो, मगर वो जानती थी ये सच ही उसकी असल ताकत है। डॉक्टर माहीन को शदीद बेचैनी ने आन घेरा। उसे बार बार पाशा का लबो लहजा और आंखों की वो सर्द महरी याद आती तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते। ये सब कुछ बार बार जहन में घूम रहा था। वो जानती थी वो जिस सच के साथ खड़ी हुई है वो रास्ता कांटों भरा है, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि बिलाल अगला वार कितनी शिद्दत से करेगा। अगली सुबह जब वो अस्पताल पहुंची तो हर चीज मामूल के मुताबिक लग रही थी, मगर जैसे ही वो पार्किंग से निकली एक स्याह रंग की गाड़ी उसके करीब आ रुकी। कुछ समझने से पहले ही 2 आदमियों ने उसे पकड़ा, मुंह पर रुमाल रखा और पलक झपकने से पहले ही
وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک نرم بستر پر پایا۔ باہر گرج چمک کے ساتھ بارش تیز ہو چکی تھی۔ کمرے کی کھڑکیوں سے تیز ہوا اندر آ رہی تھی۔ فارم ہاؤس شہر سے بہت دور ایک سنسان ویرانے میں تھا۔ کمرہ شاندار اور وسیع تھا۔ بڑی بڑی کھڑکیاں، سفید پردے اور سامنے لگی دیوار پر قیمتی پینٹنگز۔ یہ کسی عام جگہ کا منظر نہیں تھا۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھی، ذہن گھوما اور وہ آس پاس کے ماحول کو دیکھنے میں محو ہو گئی۔ تبھی دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور بلال پاشا اندر داخل ہوا۔ سخت چہرہ، سرخ آنکھیں، ہاتھ میں سگریٹ لیے وہ پرسکون انداز میں اندر داخل ہوا۔ اس نے آ کر دوبارہ دروازہ بند کیا اور بغیر کچھ کہے ماہین کی طرف بڑھنے لگا۔ ماہین دیوار کے ساتھ خود کو چپکا گئی۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ وہ سہم سی گئی۔ بلال چند قدموں کے فاصلے پر رک کر بولا، کتنی بہادری دکھا لی تم نے۔ اب بتاؤ تم کیا سمجھتی ہو؟ تم جیت گئی، تم نے رپورٹ لکھ دی اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ زیادہ سے زیادہ کیا کر لوگے بلال پاشا؟ میں اس مقام پر آ کر بھی اس مظلوم لڑکی کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی، اور اس کے بعد میرا اللہ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ ڈاکٹر ماہی نے روتے ہوئے بولا تو بلال پاشا اس کے اتنے قریب آ گیا کہ ماہین کی سانسیں الجھنے لگی۔ اسی پل ایک زوردار بجلی کڑکی، پوری عمارت کانپ گئی اور اگلے ہی لمحے لائٹ چلی گئی۔ ہر طرف گھپ اندھیرا چھا گیا۔ ماہین کی ایک بے اختیار چیخ گلے سے نکلی اور وہ ڈر کے مارے جھٹ سے آگے بڑھی اور بلال کے چوڑے سینے سے جا لگی۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کی قمیض کو تھام چکے تھے۔ اسی لمحے نے بلال کو جیسے جکڑ لیا، مگر بلال پتھر کے مجسمے میں ڈھل گیا۔ وہ لڑکی جو اسے للکارتی تھی، جو اس کے غرور کے آگے سینہ تان کر کھڑی ہوتی تھی، آج اپنے ہی دشمن جان کے سینے سے لگی، اسی سے پناہ کی طلبگار تھی۔ چند لمحوں بعد لائٹ واپس آ گئی۔ کمرہ دوبارہ روشنی سے بھر گیا۔ جیسے ہی روشنی آئی، ماہین نے چونک کر خود کو پیچھے کر لیا۔ اس نے ایک نظر بلال کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ چہرہ اب وحشت ناک نہیں تھا، بلکہ اس کے چہرے پر نرمی تھی۔ دروازہ ایک بار پھر کھلا۔ اس بار خرم خانزادہ اندر آیا۔ اس کی نگاہ جیسے ہی ڈاکٹر ماہین پر پڑی، اس کے چہرے پر ایک بگڑی ہوئی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ ماہین اب ان دونوں کو کمرے میں دیکھ کر شدید بدحواس ہو گئی۔ اس سے پہلے خرم اسے ہاتھ لگاتا بلال ایک جھٹکے سے اس کے سامنے آیا۔ اس نے غصے سے خرم کا گریبان پکڑ لیا اور دانت پیس کر بولا، ہر عورت مال غنیمت نہیں ہوتی، دور رہو اس سے۔ خرم نے کہہ کہا مارا، اگر اتنی ہی عزت دینی ہے تو لے کر کیوں آئے اسے؟ بلال کی آنکھوں میں اشتعال اور الجھن دونوں ابھرنے لگے۔ وہ جانتا تھا خرم سچ کہہ رہا ہے، مگر اس نے ایک لمحے کے لیے ماہین کی طرف دیکھا جو خوف سے پیلی پڑ گئی تھی۔ بلال نے خرم کو ایک جھٹکے سے پیچھے دھکیلا۔ نکل جاؤ یہاں سے۔ خرم بولا، تم بدلتے جا رہے ہو پاشا۔ بلال پاشا نے خاموشی سے خرم کی طرف دیکھا اور دروازے سے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ خرم دانت پیستا ہوا باہر نکل گیا۔ کمرے میں دوبارہ خاموشی چھا گئی۔ بلال نے چند لمحے کھڑے رہ کر گہری سانسیں لی، پھر آہستہ سے زمین پر جھکا اور وہ دوپٹہ اٹھایا جو ماہین کے کندھوں سے پھسل کر فرش پر گرا تھا۔ ماہین کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ بلال نے اس کا دوپٹہ احترام سے تھام کر آہستگی سے اس کے سر پر ڈال دیا اور اپنی نگاہ جھکا لی۔ ماہین کی پلکیں لرزنے لگی۔ اس نے چونک کر بلال کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور الجھن تھی۔ وہ مرد جو غرور میں چور تھا، وہ اس کا مددگار بن کر سامنے آیا تھا۔ پھر وہ بغیر کچھ کہے پلٹ گیا اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ ماہین ساکت کھڑی رہ گئی، مگر دل کی دھڑکن تیز، یکدم تیز ہو گئی۔ فارم ہاؤس میں اس کا دوسرا دن تھا اور وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ ملازمہ کھانے کے ساتھ ساتھ اسے بخار کی ٹیبلٹس بھی دے جاتی، مگر اسے آرام نہیں آ رہا تھا۔ بلال پاشا اس کے کمرے میں دوبارہ نہیں آیا، مگر وہ اپنی ملازمہ سے اس کی مکمل خیر خیریت معلوم کرتا رہا۔ جب ملازمہ نے اسے بتایا کہ ماہین کا بخار ٹوٹ نہیں رہا تو وہ پریشان ہو گیا۔ اچانک دروازہ کھلا۔ وہ چونکی۔ وہ اپنے ملازمہ کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا، لیکن اس نے ماہین کی طرف دیکھنے سے گریز کیا۔
इन्हें तैयार करो, हमें चलना है, उसने संजीदगी से कहा। मुलाजमा फौरन हरकत में आई, मगर वो बुदक गई और फौरन बोली, कहाँ? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? माही ने परेशानी से पूछा। पहले हॉस्पिटल, डॉक्टर से चेकअप करवाना है तुम्हारा। और फिर? वो रुका तो माही ने बेचैनी से पूछा, और फिर तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। बिलाल ने मुख्तसर जवाब दिया तो वो शशदर रह गई। कुछ देर बाद गाड़ी शहर की तरफ रवां दवां थी। पूरे रास्ते खामोशी छाई रही। गाड़ी एक निजी हॉस्पिटल में रुकी। बिलाल ने उसे डॉक्टर को चेक करवाया, मेडिसिन ली और फिर उसे उसके घर के गेट पर उतार कर बोला, जा सकती हो। तो माही ने एक पल के लिए जैसे उसकी बात पर यकीन नहीं किया। क्या मतलब? तुम मुझे यूं ही छोड़ रहे हो? वो उलझन में बोली। बिलाल ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, हाँ, तुम आजाद हो, जाओ। क्या वाकई? ये अब कौन सी चाल है? वो मशकूक सी हुई तो बिलाल ने पलटकर उसे गहरी नजरों से देखा कि वो नजरें चुराने पर मजबूर हो गई। माहिन गाड़ी से उतरी, लेकिन दिल में एक भंवर सा चल रहा था। ये सब क्या है? वो दिल में सोचती रही। अगर वो चाहता तो उसे बहुत नुकसान पहुंचा सकता था। मीडिया को अगर वो कुछ भी बता देती तो बिलाल का पूरा सियासी कैरियर खत्म हो सकता था। लेकिन इतने बड़े खतरे को मोल लेकर वो उसे कैसे आजाद कर सकता है? ये बात डॉक्टर माहीन को किसी तौर पर भी हजम नहीं हो रही थी। डॉक्टर माहीन के सीनियर्स ने बारहा उसे कहा कि वो मीडिया पर आकर जरा सा भी बयान दे तो ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। उन असर लोगों के चेहरों से नकाब जरूर उतारना चाहिए जो औरतों की इज्जत से खेलते हैं। मगर जाने क्यों माहीन चाहकर भी बिलाल पाशा के खिलाफ एक लफ्ज ना बोल पाई। अलबत्ता उसने खुर्रम खानजादा के खिलाफ केस बनाकर अदालत में भेज तो दिया था, लेकिन वो जानती थी कि उनका केस कमजोर कर दिया जाएगा, बल्कि हो सकता है एक दो पेशी के बाद सिरे से ये केस खत्म ही कर दिया जाए। वो ज़ारा के लिए बेहद परेशान थी, क्योंकि ज़ारा ने डॉक्टर माहीन से बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता कर ली थी। इधर ज़ारा का केस अदालत में दाखिल हो चुका था। सब हैरान रह गए जब बिलाल पाशा खुद उस केस में गवाह बनकर अदालत में पेश हुआ। उसकी गवाही पर खुर्रम खानजादा को सजा हो गई। ये सब कुछ माहीन के लिए नाकाबिले यकीन था। वो बिलाल को जानती थी, एक ऐसा मर्द जो अपने दोस्त के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, लेकिन अब वही शख्स अपने दोस्त के खिलाफ खड़ा हुआ था। वो ना सिर्फ उसके खिलाफ खड़ा हुआ था, बल्कि तमाम सबूत और गवाहों को भी अदालत लेकर आया था। अगर वो इस केस में ज़ारा की मदद ना करता तो शायद खुर्रम खानजादा को सजा ना होती। लेकिन ये सब कुछ उसके लिए इंतहाई हैरान कुन था कि बिलाल पाशा ये सब क्यों कर गया। वो इस सवाल का जवाब जानना चाहती थी, मगर अदालत की कार्रवाई के बाद उसे बिलाल पाशा कभी दिखाई नहीं दिया। वो अक्सर तन्हाई में बैठकर बिलाल पाशा को सोचती कि ऐसा क्या हो गया था जो बिलाल पाशा जैसा सख्त दिल इंसान इस हद तक बदल गया। खुद उसके दिल ने कई बार बिलाल पाशा से मिलने की हसरत की, मगर अपने दिल की इस डिमांड पर वो बेहद खौफजदा भी हो गई। ये मुझे क्या हो गया? ये मैं क्या सोचे जा रही हूं? एक दिन अस्पताल की शाम मामूल से मुख्तलिफ थी। उसकी ड्यूटी खत्म हो चुकी थी, मगर जैसे ही इमरजेंसी अलार्म बजा वो अपने कमरे से बाहर निकली। वो मरीज जो इमरजेंसी में लाया गया था खून में लथपथ था, और जब उसका चेहरा देखा तो इसके रोंगटे खड़े हो गए। वो बिलाल पाशा था, दुश्मने जहां उसे देखकर खुशगवार हैरत हुई थी, वहीं उसका दिल इसे इस हाल में देखकर तड़प उठा। गोली उसके कंधे को चीर कर निकल गई थी और वो होशो हवास खो चुका था। डॉक्टर माही ने उसे फौरी तौर पर ऑपरेशन थिएटर मुंतकिल किया और पूरी निगरानी खुद संभाल ली। ऑपरेशन कामयाब रहा, लेकिन बिलाल को होश आते आते 2 दिन लग गए। जब उसने आंखें खोली तो सामने सफेद कोट में मलबूस मगर थकी थकी नम आंखों वाली डॉक्टर माहीन खड़ी थी। बिलाल के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। डॉक्टर, मुझे देखकर खुशी तो नहीं हुई होगी? वो कमजोर जख्मी मुस्कुराहट से बोला तो माहीन के चेहरे पर फिक्र फैल गई। वो खामोशी से उसके सिरहाने बैठ गई और उसके कंधे की मरहम पट्टी करने लगी। वो जरा सा कराहा तो माहीन की आंखें नमकीन पानियों से भर गई। बिलाल पाशा की आंखों में पहले तो हैरत आई, फिर उसने सुकून से आंखें बंद कर ली।
जब तक वो अस्पताल में रहा, माहिन उसकी देखभाल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती रही। उसे जबरदस्ती दवा खिलाती, बार बार उसे देखने के बहाने कमरे में आ जाती, उसे इतनी तवज्जो देती कि वो चिढ़ जाता और मेडिसिन लेने से इनकार कर देता। तो उसी लम्हे डॉक्टर माहिन इतनी परेशान हो जाती कि उस पर गुस्सा करने लगती और वो उसे गुस्से में देखकर मुस्कुरा देता। ऐसे में माहिन कई बार अपने आप से ये सवाल करती कि वो बस अपना फर्ज अदा कर रही है या कुछ और, क्योंकि किसी और मरीज के लिए ऐसे जज्बात क्यों नहीं जाग रहे। वो उलझने लगी कि बिलाल पाशा के डिस्चार्ज का वक्त आन पहुंचा और उसकी आंखों की उदासी गहरी हो गई। जब बिलाल ने अस्पताल के बिस्तर से उठकर जाने की तैयारी की तो उसने अचानक बिलाल से पूछा, तुम इतना कैसे बदल गए कि अपने ही दोस्त के खिलाफ हमारी मदद कर गए? बिलाल ने जख्मी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मोहब्बत बड़ी जालिम चीज़ है माहिन, इसने मुझसे जुल्म छीन कर मुझे इश्क थमा दिया, मैं कैसे ना बदलता। माहिन साकित रह गई। उसके दिल ने एक लम्हे के लिए धड़कना बंद कर दिया। वो उसे देखती रही और कुछ बोल ना सकी। बिलाल आहिस्ता से उठा और उसके सामने खड़ा होकर बोला, मोहब्बत कर बैठा हूं एक जालिम सी लड़की से जो उसूलों पर समझौता नहीं करती। उसकी बात पर माहिन की पलकें लरजने लगी। निकाह करोगी मुझसे? माही ने हैरत से देखा और फिर हया की लाली ने उसके गाल सुर्ख कर डाले। उसका चेहरा खुद ब खुद झुक गया तो वो बिलाल पाशा के सीने से आन लगी। वो कोई जवाब ना दे सकी, सिर्फ आंखों की नमी और होंठों की हल्की सी लर्जिश ने सब कुछ कह दिया। वो मोहब्बत तो तब से ही कर बैठी थी जब बिलाल ने फार्म हाउस में उसके सर पर दुपट्टा रखा था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।